Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. I would like to invite Arjun on stage. Ladies and gentlemen, Arjun Kapoor. He rarely smiles. Are you happy looking at your trailer now? I saw it from the best angle possible. I could see my nostril hair from down there. No, I smile here. This film made me smile when I saw the film. I felt proud that I've been part of something that is today's India. I think this film speaks about, in many ways, the way our country has changed in the last so many years. I'm very, very fortunate. Sir thought of me for this film. It's actually a very fascinating story. अगर आपके पास time है, जो मुझे लगता है होगा, तो मैं 2 minute लेके बताता हूँ. I called him up because I like the trailer of Raid, and because I know him for a while, and I just called him. I said, "Sir, trailer बहुत अच्छा लग रहा है. I'm very excited to see it." He said, "तू free है?" I said, "हाँ sir, मैं free हूँ." अच्छा, मैं कुछ email करता हूँ तुझे, तेरा email ID भेज. And he sent Is me a that script. casual about it? Yeah, he didn't tell me what it was. He was that casual. And I remember, sorry Myra, but I remember it was Valentine's Day when I read the script. So राजकुमार गुप्ता ने मुझे मेरी जिंदगी का best Valentine's Day gift दिया. वो थी ये script, India's Most Wanted की, and that's how our journey began last Feb. So I feel very lucky he chose me. I feel very lucky at a time where content is coming into play, where these kind of films are being made. We have managed to play a small part in putting out something that is unique. You know, you're very experimental yourself, you know. Sir ki film mein, again, from his very first film, he's also experimented, and I think Raid was like the little cherry that he had in the top, you know, did very well. But you're very experimental yourself also, you know. Sometimes I always ask you this question: do you feel this fear factor sometimes कि मैं एक hero भी हूँ, लोग मुझे as a hero perceive करते हैं, बोलते हैं ये इतने सारे experiments और jumping क्यों कर रहा है? Before, you know, he has 4 or 5 लगातार hits behind him sometimes. No, I think hero की तरह सोचने का ज़माना चलेगा. If you see a poster also, we've not gone and pitched the film as a hero versus a villain. It is underdogs, and it is how the common man needs to see how our officers put themselves out there. So it's not an officer, it's not one person. In reality, there are a bunch of people who have to come together. So choices का इतना कोई सोचता नहीं, कुछ choices गलत भी जाती है. तो I won't say that everything falls right. You live and learn. As an actor, I feel we are in a wonderful place today where there are directors who are thinking of making a film like this and many more such that have done well in the last few years. So I think it's good to experiment without being worried, because audience is welcoming experiments. I think it all stems from लोग जो देखने आते हैं, फिर आपका मन करता है कि आप भी अलग चीजें करो, because उनको अब मजा आने लगा नई चीजें देखने में. तो I guess it's just being born at the right time and taking those chances when you get them here. I could have easily, again, I could have said, sir, I'm not able to do the film right now because I'd already committed to Panipat. But it was graceful on Ashu's part. He pushed Panipat by a month from the dates. So we got enough time to start the film and finish the film on time. We've shot this film exactly in that stipulated period of time that we had to. And that's how it happens. See, today people are collaborative. Another producer understands, another director understands. Everything falls into place when there is a bunch of people who want to make good films around you. So I think an actor taking credit alone is boring and not true. I think there's a lot of things that have to fall into place for you to reach this stage. You know, 2 questions always come to mind when I'm looking at any one of your films, sir. एक तो आपकी story बड़ी hero होती है. यहाँ पे भी यार, अगर जैसे अर्जुन ने बोला, सारे एक्टर्स को क्रेडिट मिल रहा है. आपकी एक और पोस्टर है, उसमें भी सारे चेहरे दिखाई दे रहे हैं. और दूसरी चीज, जब आप ऐसी स्टोरी लिखना शुरू करते हैं, आपने जैसे बोला कि 3 साल पहले ये जर्नी चालू हुई, ये ऑडियंस का जो नया एपेटाइट है जो हम देख रहे हैं पिछले 1.5 साल से हुआ है. तो 3 साल पहले वो यू स्लाइटली, यार मैं इसमें कुछ चेंजेस करूं या नहीं करूं, या फिर आप ऐसे एक बारी स्टोरी डिसाइड कर ली, देन यू पुट ब्लिंकर्स एंड यू मूव फॉरवर्ड? आई थिंक मेरे लिए ये ज़रूरी, अगर आप मेरी फिल्मोग्राफी देखें तो शुरू से चाहे वो आमिर हो, नो वन किल जेसिका हो, घनचक्कर हो, या रेड हो, या इंडियाज़ मोस्ट वांटेड हो, कभी मैंने ये नहीं सोचा है कि क्या ऑडियंस को पसंद आएगी. आई थिंक कभी ना कभी एज अ फिल्म मेकर, एज अ स्टोरी टेलर, हमारी जो एक सच्चाई है वो कहानी से आती है. उसको किस तरह से हम देखते हैं उससे आती है, विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय the surroundings कि क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है, because then you are not being true to the subject. And once you have decided on the subject, तो वो एक journey शुरू होती है. फिर जब आप उसको लिखते हैं, उसमें वो सच्चाई रखनी बहुत ज़रूरी होती है ताकि वो फिल्म को या वो उस स्क्रिप्ट को आप कहीं और ले जा सके. But how can you not, don't you get affected by surroundings also? कुछ ऐसी फिल्में अगर चल रही हैं शायद नहीं चली, मुझे हल्का सा चेंज करना चाहिए, because आप तो रियल एनवायरनमेंट में जी रहे हैं उस समय.
Correct. सो यू नो यू आर प्रॉब्ली रीडिंग सोशल मीडिया, टीवी देख लिया, थोड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देख लिए, कभी कभार ऐसे आता है? देखिए सोशल मीडिया मैं उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, तो मेरे ख्याल से थोड़ा मैं वो नहीं सोचता। मेरे ख्याल से मेरे लिए सबसे ज़रूरी होता है कि ये कहानी किस तरह कही जानी चाहिए, उस कहानी की सच्चाई, इंटीग्रिटी होनी चाहिए उस कहानी में। और एक बार जब आप स्क्रिप्ट ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद आप सोचते हैं कि किस तरीके से इस कहानी को किसके पास ले जाया जाए। तो मेरे ख्याल से वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देन थिंकिंग अबाउट क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, बिकॉज नोबडी नोज। किसी को कुछ पता नहीं क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। तो आप जो अपनी सच्चाई है, जो आपको अपने कन्विक्शन है, वॉट एवर यू बिलीव इन, you go ahead with that, and then people like Foxstar Studio, people like-minded people like Arjun, अगर आप मेरी पिछली फिल्में देख लें तो बाकी जितने लोगों ने मेरे साथ काम किया है, कहीं ना कहीं उन्हें उस कहानी पे भरोसा था, कहीं ना कहीं उन्हें स्क्रिप्ट पे भरोसा था, और उन्होंने उस स्क्रिप्ट और थोड़ा मोड़ा मुझ पे भरोसा था, उसको लेके आगे बढ़े हैं। तो वो बहुत ही अच्छा होता है किसी भी फिल्म के लिए। सो आई हैव ऑलवेज वर्क लाइक दैट। आई लव द वे दैट यू गिव, आप तवज्जो देते हो सारे एक्टर्स को अपनी फिल्म में, मतलब छोटे से छोटा रोल भी होगा उसको अच्छी तरह प्रोमिनेंटली दिखाते हो, तो एज एन ऑडियंस एंड एज अ व्यूअर बहुत अच्छा लगता है इसमें। ये जनाब जब आते हैं सेट पर, मुझे लगता है कि इज एन इंसाइक्लोपीडिया नाउ, हाँ फिल्मों का ये काफी कुछ मार्केटिंग में नहीं बचा है। ये बोलता है कि वैसे वरुण धवन इज फार ग्रेटर इन द मार्केटिंग। नो, आई थिंक अर्जुन कपूर A to Z बैठा है, बस मैं वेट कर रहा हूं जिस दिन डायरेक्ट करेगा। तो हिम कमिंग ऑन द सेट वन डे, आपको थोड़ा सा प्रेशर है, 1 महीना दिया हुआ है आपको पिक्चर कंप्लीट करने के लिए। 1 महीना, चलो 2 महीना, हाँ 3 महीने थे हमारे पास, अच्छे। बट टू गेट एन अर्जुन ऑन सेट एंड लॉट्स ऑफ डिस्कशंस हैपनिंग, मुझे लगता है आप दोनों ऐसे हो कि जैसे सुबह से शाम तक सिर्फ डिस्कशन चल रही थी। ऐसे है आप दोनों का रिलेशनशिप? नहीं, देखिए अर्जुन क्या है कि अर्जुन को पता है कि किस चीज़, मोस्टली एक्टर्स को एंड स्पेशली अर्जुन को पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे। वो बहुत ही प्रोफेशनल है। जब सेट पे आते हैं जो भी डिस्कशन होता है हम लोग बैठ के पहले डिस्कस करते हैं, बट जब वो सेट पे आते हैं तो वो उतने ही प्रोफेशनल हैं, चाहे वो टुवर्ड्स द डायरेक्टर हो, चाहे वो टुवर्ड्स द अदर स्टार कास्ट हो। क्योंकि देखिए इसमें मैं फॉर्चुनेट रहा हूँ कि मुझे पहली फिल्म से ही, चाहे वो आमिर हो, चाहे वो नो वन किल जेसिका हो, रानी विद्या, बाकी अजय सर के साथ, बाकी लोगों के साथ जितनी भी मेरी फिल्में हुई हैं उसमें बहुत रेस्पेक्टफुल रहे हैं जो भी स्टार्स हैं टुवर्ड्स दी अदर एक्टर। सो उनको भी कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ये मिलनी चाहिए, क्रेडिट मिलना चाहिए कि वो अपने को स्टार्स को इतनी अच्छी तरीके से इन्वॉल्व करते हैं और चीज़ उनको रेस्पेक्ट करते हैं। मैं एक छोटा सा 10 सेकंड के लिए एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस फिल्म में मेरे ख्याल से एक कैरेक्टर हम लोगों ने रियल लोकेशंस में शूट किया है और पूरे नेपाल में हाईवे में शूट किया है। तो हमारा रियल लोकेशन में जब हम शूट कर रहे थे तो एक दिन हमने अर्जुन का किया और उसके बाद दूसरे दिन हमारे एक दूसरे एक्टर की शूट हो रही थी। पर अर्जुन जो थे वो सुबह 7 बजे से लेकर वो मुझे फ़ोन किए जा रहे थे, उस एक्टर को फ़ोन किए जा रहे थे ताकि वो खुद होटल रूम में बैठकर उनको क्यू दे सके। सो वो इतने प्रोफेशनल अभी के एक्टर्स हैं और वो दैट रियली टचेस यू। And I think that's how today's people, that's how actors are also approaching their work. Stars, actors, all of them are approaching their work. So in this environment, I think there is no possible. I mean, मजाक, हंसी मजाक हर सेट में होना चाहिए। यहाँ तो मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अच्छा भाई मेरी रेपुटेशन बर्बाद कर देगा ये आदमी। मैं हंसता नहीं हूँ, मैं हंसी मजाक नहीं करता हूँ। आप कभी सेट पे आओ मेरे साथ, मैं आप सबको बुलाना चाहूंगा। मेरी रेपुटेशन चेंज करनी पड़ेगी मुझे। सेट का खर्चा बढ़ जाएगा अगर आपने सबको इन्वाइट नहीं, किया। वो जरूर है कि हम लोग पहले, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो प्रोड्यूसर मीटिंग हो, मार्केटिंग मीटिंग हो, हमारी मीटिंग हो, हम लोग पहला 10 मिनट अर्जुन को देते हैं बोलने के लिए, उसके बाद हम लोग बोलते हैं, वो एक अलग बात है।